ज्वाइन करेंगे। ये तमाम बच्चे क्लास ज्वाइन करेंगे। नंबर 9 Okay, shall we start our today's session? And the topic name is and also subject name is. आज हम कौन से सब्जेक्ट पर पढ़ने वाले हैं? हाँ, नक्शा हमारा साथी। हाँ रे बाबा, हाँ। स्पीच का क्या हुआ? वो मेरा आरिफ ने स्पीच भेजी है, बहुत अच्छा बोलिए, माशाल्लाह। नहीं बना रही, नहीं बना रही। फिर वही बोला। ओके, चलेंगे, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ये पूछना चाहती हूँ कि कल का जो मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन थे, कितने बच्चों ने मुझे सेंड किए हैं? हाँ, चलेंगे, स्टार्ट करते हैं। नक्शा हमारा साथी। नौवां सबक, नक्शा हमारा साथी। हमने 4th स्टैंडर्ड में नक्शा इस वर्ड से हम बखूबी वाकिफ थे कि नक्शा मतलब क्या। कौन बताएगा नक्शा मतलब क्या? हाँ, मैं बताऊंगी। हाँ बताओ पलक। नक्शा मतलब तस्वीर। नक्शा मतलब तस्वीर। तस्वीर, तस्वीर रहती है और उसके जरिए हम कोई मुकाम पर हमको पहुंचना रहता है तो हम उस मुकाम के पर पहुंच सकते हैं उस नक्शे के जरिए, जिसमें मुख्तलिफ सिंबल रहते हैं, मुख्तलिफ अलामात रहती है। उन अलामात के जरिए हम उस इस्तेमाल अलामात का इस्तेमाल करके हम उस नक्शे पर पहुंच सकते हैं। नक्शे में मुख्तलिफ अलामात ये जैसे और हरियाणा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ, नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से आवाज आ रही है मेरी? ओके, तो चलेंगे हम सबक देखते हैं। सब मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, मैं पीपीटी बता रही हूँ आप लोगों को। पहले मैं म्यूट कर देती हूँ मैं आप लोगों को, उसके बाद क्या करना है कम। अच्छा, एक मिनट, बड़ा दिख रहा है, मोबाइल करेंगे, ऐसे ही पढ़ेंगे। नक्शा हमारा साथी। चलेंगे, मैं स्टार्ट करती हूँ पढ़ना कि हमारे माहौल में जमीन की सतह एक जैसी नहीं है बच्चों। जो हम जिस जमीन में हम रहते हैं, हम इससे पहले भी जमीन की मुख्तलिफ शक्लें देख चुके हैं। सतह मुर्दुपा, मैदान, पहाड़, टीले, टेकड़ी वगैरह। तो एक हमारी जमीन की जो शक्लें एक जैसी नहीं है बच्चों। नशेब व फराज मतलब ऊंची नीची जगहों की वजह से इसकी खास शक्लें बनती रहती है, जो कि हमने सबक के ने
جو کہ ہم نے پچھلے سبق میں ویڈیو میں ہم نے سب دیکھ چکے ہیں کہ زمین کی مختلف شکلیں کیا ہے. تیسرے سبق میں ہم نے اس ویڈیو کے تھرو ہم میرا خود کا جو میں نے ویڈیو بنائی تھی اس ویڈیو میں نے بخوبی اچھی طرح آپ لوگوں کو مختلف تصاویر کا استعمال کر کے پہاڑیاں، وادی، سطح مرتفع، میدان، جزائر وغیرہ زمینی شکلیں میں آپ لوگوں کو اچھی طرح سمجھا چکی ہوں. اور بچوں ہمارا ماحول کیسا ہے یا زمینی شکل یعنی قدرتی تشکیل، زمینی تشکیل یعنی قدرتی تشکیل کی معلومات ہونا ہمیں ضروری ہے کہ یہ ماحول ہمارا کیسا ہے اور زمین کی بناوٹ کیسی ہے یا قدرتی بناوٹ کیسی ہے، تو ہم کو یہ سب باتیں جاننا ضروری ہے. چوتھی جماعت میں بچوں ہم نے نقشے کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کی تھی اور اس میں 5000 سال پہلے کا نقشہ بھی شامل تھا. تو بچوں اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کو قدیم زمانے سے ہی نقشہ بنانے کی ضرورت محسوس ہوتی تھی. یعنی بچوں قدیم زمانے سے ہی انسان نقشے کا استعمال کرتے آ رہا ہے، تقریباً 5000 سال پہلے سے ہی. جب انسان نے شکار کرنا، بولنا سیکھا، تقریباً جب سے ہی انسان نے نقشے کا استعمال کرنا سیکھ لیا تھا یا اس کی ضرورت اسے ہوتی تھی. اور اس نقشے کا استعمال خاص طور پہ مختلف قسم کی جنگوں میں ہوتا تھا. جو جنگیں چلتی تھی تو اس مختلف قسم کی جنگوں میں ان نقشے کا استعمال ہوتا تھا. کیوں ہوتا تھا نقشوں کا استعمال؟ کے جنگ کے دوران بچوں زمین کی شکلیں بناوٹ کی گہرائی سے معلومات کے لیے کہ کہاں نشیب ہے، کہاں نشیب و شراب ہے، اور کہاں وادی ہے، کہاں جزائر ہے، کہاں سطح مرتفع ہے، کہاں ہم چھپ سکتے ہیں، کہاں دشمنوں کو ہم شکست دے سکتے ہیں، کہاں ہماری فوج کا ٹھہراؤ کر سکتے ہیں. تو یہ سب معلومات کے لیے پچھلے زمانے سے ہی مختلف طور کی جنگوں میں نقشوں کا استعمال ہوتا چلا آ رہا ہے. اس کے علاوہ بچوں کی زمین کی اونچائی کتنی ہے اور حیت یعنی اس کا کسی چیز زمین کی اونچائی کتنی ہے، اس کا حجم کتنا ہے. حجم اور حیت مطلب بچوں کہ وہ کتنے علاقے پر پھیلی ہوئی ہے. حجم، حیت کہ وہ کتنے علاقے پر پھیلی ہوئی ہے بچوں، تو نقشے میں ہم کو وہ دکھائی دیتا ہے. اور نقشے زمین کی ان شکلوں کو الگ الگ طور سے نقشے پر زمین کی مختلف شکلوں کو دکھایا جاتا ہے. چلیں گے اب ہم آگے معلومات حاصل کریں گے کہ نقشوں کی بنیاد پر ہم زمین کی کن کن طریقوں سے شکلوں کو پہچان سکتے ہیں اور شکلوں کی معلومات حاصل کر سکتے ہیں. چلیں گے یہ کر کے دیکھتے ہیں بچوں کے یہ ہے تعلیمی، آپ کی اسکول کے طرف سے تعلیمی سیر کے لیے کسی قلعے پر جا رہے ہیں، مطلب آپ کی اسکول سے کوئی پکنک جا رہی ہے اور ایک مقام پر پہنچ کر آپ بس سے اتر گئے. قلعہ جیسے شیونیری قلعہ وغیرہ لے لو یا کوئی قلعہ لے لو، تو ہماری اسکول سے وہاں ہم پکنک کے لیے جا رہے ہیں اور قلعے سے دور بچوں ایک مقام پر بس سے ہم اتر گئے ہیں بچوں. اور اترنے کے بعد ایک بس سے اتر گئے ہیں اور قلعہ ہے بچوں پہاڑی پر. عام طور پر قلعے کہاں واقع ہوتے ہیں؟ قلعے پہاڑیوں پر ہی واقع ہوتے ہیں. اور قلعے تک پہنچنے کے لیے اب ہم کو مزید ایک پہاڑی اور ایک وادی پار کرنا ہے. تو دونوں پہاڑی اور وادی سامنے دیے ہوئے چوکون میں بنائیے اور غور کیجئے کہ شکل بناتے وقت وادی کی گہرائی اور پہاڑی کی اونچائی کس طرح بتائیں گے. دیکھیں گے بچوں مطلب کہ ہم کو کیا بول رہے ہیں کہ ایک اندازن جس طریقے سے ایک انداز سے آپ نقشہ بنا سکتے ہیں، تو اس انداز سے آپ کو صرف ایک تجربہ کرنے کے بول رہا ہے کہ تاکہ آپ کو نا میپ بناتے، نقشہ بناتے اور اس کو پڑھتے، مین تو اہم تو اس کو سمجھنا اور اس کو پڑھنا آ جائے. فرض کیجئے بچوں کہ ہم اسکول سے کوئی قلعے کی سیر کو جا رہے ہیں نا، اور ہم ایک مقام پر پہنچ گئے ہیں. اب آپ کو میں بتاتی چلوں بچوں کہ
قلعے کی علامت نا میپ میں ایک علامت واضح ہوتی ہے. قلعے کی علامت بچوں کے جیسے ریل سب دیکھیے اگر ایسی رہی اور اس کے ایسا 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 رہا تو یہ پین کا سمجھ لیں گے تو یہ ریل کی پٹری ہے. یہ اگر یہ لائن اور موٹی رہی تو سڑکیں، اگر لائن باریک رہی تو یہ موٹی رہی تو ہائی وے. ہاں وعلیکم السلام. اور کم رہی تو سڑکیں. تو بچوں اب دیکھو قلعے کی علامت سے میں آپ لوگوں کو آشنا کرتی چلوں. تو قلعے کی علامت کو کیسے بنانا ہے ہم کو دیکھیے میں بنا رہی ہوں قلعے کی علامت. بیٹا جسٹ ویٹ. ہاں بک میں آپ دیکھیں گے تو because of it's not a board or chalk, it is a mobile and digital pen. تو now سمجھ کے لیں گے تھوڑا کہ میں پھر سے ٹرائی کرتی ہوں ایک بار اور. with the help of this symbol. ہاں پہاڑی کے سمبول پر ایک پہاڑی کے اوپر ہے اور آپ قلعہ سب پین نہیں چل رہی ہے میری. بس سے اتر کر آپ کو بس سے اتر کے آپ کو واپس سے جانا ہے. کیوں نہیں چل رہی ہے میری پین؟ تو بچوں بس سے اتر کے آپ کو جانا ہے تھوڑا. تو یہ ایسے صرف آپ کو خاکہ بنانا ہے تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ آپ نے کیا بنایا اور کیسے بنایا اور پہاڑ کی اونچائی کس طرح بنائی، گہری وادی کس طرح بنائی. تو صرف آپ کو محمود ڈونٹ ٹچ دا اسکرین. یہ سب آپ کو اپنے طور پر کرنا ہے. اب بچوں دیکھیں گے ذرا یہ جو نیچے دیے ہوئے نقشہ الف، نقشہ بے اور نقشہ جیم ہے بچوں، اس کا آپ ذرا مشاہدہ کیجئے. پہلے دیکھیے یہ نقشہ الف. سب ہر نقشے میں بچوں سمت رہنا ضروری ہے. یہ ہے بچوں نقشہ الف. نقشہ الف یہ دیکھو سمت ہر نقشے میں رہتی ہے تاکہ ہم کو سمت کے ذریعے نقشے پڑھنے میں آسانی ہو. اوپر رہا تو شمال، نیچے رہا تو جنوب اور سیدھے ہاتھ طرف مشرق، بائیں ہاتھ طرف مغرب. اب یہ نقشہ الف میں دیکھیے صرف آپ کو ہاں یہ نقشہ الف میں آپ کو خطوں کے درمیان کا فاصلہ نظر آ رہا ہے. جبکہ نقشہ بے میں دیکھو اونچائی دی ہوئی ہے بچوں اور یہ یہاں پر سمبول بھی دیا ہوا ہے. یہ یہاں پر سمبول بھی دیا ہوا ہے. اور نقشہ جی میں بچوں دیکھو جنگلات کا نقشہ ہے، پوری ہریالی دی گئی ہے. اب ہم نے تو اندازن ایسا بولا، اب ذرا دیکھیں گے یہ واقعی میں کس چیز کے نقشے ہے. تو درج بالا نقشوں کو ہم نے دیکھا بچوں یہ تمام نقشے ایک ہی علاقے کے ہیں، لیکن ان نقشوں میں فرق یہ ہے بچوں کہ کوئی نقشے میں اونچائی بتائی گئی ہے تو کوئی نقشے میں رنگوں کا استعمال کر کے، ہرے رنگ کا استعمال کر کے جنگل بتائے گئے ہیں. تو کسی نقشے میں خطوں کے درمیان کا فاصلہ بتایا گیا ہے. یہ تمام نقشے بچوں ایک ہی زمین کے الگ الگ طور پر بنائے گئے نقشے ہے. اور جیم والے نقشے کو سے ہم کو محسوس ہوتا ہے بچوں کہ یہ نقشہ جنگل کا ہے. کیونکہ وہ گرین کلر میں، ہرے کلر میں ہے. اور الف بے جیم میں سے سب سے اونچا مقام کس سمت میں ہے تو شمال میں ہی ہے بچوں.
तो ये था कि हम एक ही जमीन के मुख्तलिफ तौर पर नक्शे भी बना सकते हैं। अब बच्चों मैं आगे का पढ़ती हूँ, आगे का समझाती हूँ कि कागज पर नक्शा बनाते वक्त हमें जमीनी तश्कील की तवालत, तवालत मतलब कि उसकी लंबाई और उसत, उसत उसकी फैलाई आसानी से दिखा सकते हैं, लेकिन जमीनी तश्कील की गहराई और ऊंचाई आसानी से नहीं दिखा पाते हम। तो इन चीजों को बताने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, अलग अलग तरीका इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम जो तरीका इस्तेमाल करते हैं नक्शा बनाने में वो हम इर्तिफा खत्ती तरीका, हम इर्तिफा खत्ती तरीका, देखो बच्चों, हम जो अलग अलग तरीका इस्तेमाल करते हैं नक्शे की गहराई और ऊंचाई बताने के लिए। तो सबसे पहला मेथड है कॉन्टूर लाइन मेथड, मींस हम इर्तिफा खत्ती तरीका, दिस वन। उसके बाद नंबर 2 है बच्चों रंगों की तदरीजी तरीका यानी लेयर ट्रेनिंग मेथड। रंग का है तो मतलब रंगों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और मुनब्बती खाका मतलब डिजिटलाइजेशन पर मुनहसिर होगा कि ज्यादा से ज्यादा वाजे और क्लियर हम मुनब्बती खाका उस इलाके का बना सके। चलेंगे अब इनकी हम तफसीली मालूमात हासिल करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हम इर्तिफा खत्ती तरीका कि इसमें एक्चुअल में होता क्या है और इसमें क्या बताया जाता है। तो बच्चों हम इर्तिफा खत्ती तरीके में नक्शे में जो जमीन के नशेब व फराज है, यानी नशेब व फराज का मतलब होता है आयत, डोंट टच स्क्रीन, ऊंचाई, फिर हमवार सतह, तो ये सब नशेब व फराज बताने के लिए ये हम इर्तिफा खत्ती तरीका, खत खतों के जरिए से बनाया हुआ हम इर्तिफा खत्ती तरीका इस्तेमाल होता है। तो इसका ये तरीका इस्तेमाल होता है जिसमें जमीन की ऊंचाई बच्चों समुंदर से नापी जाती है और इसके बाद एक जैसी बुलंदी के मकामात तय किए जाते हैं। ऊंचाई नापने के बाद बच्चों के कहाँ बुलंदी सेम है, कहाँ कम है, कहाँ ज्यादा है, ये सब उसमें नोट किया जाता है। और इसके बाद इसमें मुख्तलिफ जगहों का दर्जा बंदी की जाती है, इंदराज किया जाता है। नक्शे में दर्जा करदा मुकामात को खत खींचकर एक दूसरे से जोड़ते हैं बच्चों। खत्ती तरीके में एक दूसरे से खत खींच के जोड़ते हैं और मसावी बुलंदी के मकामात को जोड़ने वाले इस खत को हम इर्तिफा खत कहते हैं। समझे बच्चों, जो इसमें बच्चों जो एक जैसे जैसे समझो इस मुकाम की बुलंदी भी 60 मीटर है, इस मुकाम की बुलंदी भी 60 मीटर है, इस मुकाम की बुलंदी भी, तो एक जैसे मुकामात की बुलंदी वाले मुकामात को खतों के जरिए जोड़ते हैं और जो खत रहते हैं उस खत को कहते हैं हम इर्तिफा खत। क्या कहते हैं उन्हें, हम इर्तिफा खत। नक्शा अलीफ देखिए, ये नक्शा अलीफ बच्चों मुसावी बुलंदी के मकामात की बुनियाद पर खतूत खींचे गए हैं और इसमें क्या हो रही है। हाँ, तो नक्शा अलीफ में बच्चों इस तरीके में बच्चों हमको नशेब व फराज मतलब सतह मुर्तफाई इलाका, ऊंचा इलाका, ढलान इलाका और मुख्तलिफ मकामात का इर्तिफा समझने में भी मदद मिलती है। और ये इर्तिफा खतूत के दरमियान फासला कम हो तो उस मुकाम की ढलान तेज होती है और अगर फासला ज्यादा हो तो जमीन की ढलान कम होती है। ये हमने नक्शा अलीफ में देखा था। मैं वापस से आपको नक्शा अलीफ पर लेकर आती हूँ। स्क्रीन भी टच नहीं हो रही है आज। ये देखो, ये है हम इर्तिफा खत्ती तरीके के जरिए बनाया हुआ नक्शा। ये है बच्चों, देखेंगे बच्चों जो सेम सेम बुलंदी वाले मुकामात है, जैसे कि सेम बुलंदी वाले मुकामात, ये 200 किलो, ये 200 किलोमीटर, ये 200 किलोमीटर, ये 200 किलोमीटर, ये 200 किलोमीटर, तो ये सेम बुलंदी वाले मकामात को बच्चों खतों के जरिए जोड़ा गया है। और ये 300 300 300 300 300 300 300, तो ये तमाम मुकामात को
सेम खतों से जोड़ा गया है। और 400 तो इनको कहते हैं हम खत्ती तरीका या हम इर्तिफा खत्ती तरीका कहते हैं बच्चों। और आप लोगों को एक बात अच्छी तरह, अगर खतों के दरमियान फासला कम है तो समझ लो कि यहाँ ढलान ज्यादा है, और फासला ज्यादा है तो मतलब ढलान कम है। मैं आप लोगों को और अच्छी से समझाती हूँ कि इधर देखो, अगर खतों के दरमियान फासला कम है बच्चों, देखो यहाँ कितना फासला कम है, तो मतलब कि ढलान है ना तेज है। और अगर फासला ज्यादा है तो मतलब कि ढलान कम है। तो ये था बच्चों हम इर्तिफा खत्ती तरीका। कैसे बुलंदी वाले मकामात को समुंदर से उनकी लंबाई नापी जाती है, और सेम बुलंदी वाले मकामात को खतों के जरिए जोड़ा जाता है। ये है बच्चों हम इत्तेफाक खत्ती तरीका। अब उसके बाद बच्चों हम जो समझेंगे वो है कि रंग का तदरीजी तरीका। रंग का तदरीजी तरीका सेकंड वन है, रंग का तदरीजी तरीका, यानी मुख्तलिफ रंगों का इस्तेमाल करके बच्चों रंग बताया जाता है। हम इर्तिफा खत्ती तरीके में ये जो नक्शा अलिफ अलिफ था बच्चों, ये भी मैंने अच्छी तरह समझाई। इसके अलावा जो प्रॉपरली उसकी मिसाल दी हुई है, हम्म, ये देखो हम इर्तिफा खत्ती तरीका, दिस वन। इसमें अगर खतों के दरमियान शिट क्या हो रहा है, ये टच हो रहा है बार 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 बार। अगर खतों के दरमियान बच्चों खतों के दरमियान अगर फासला ज्यादा है तो ढलान कम है, और फासला कम है तो ढलान ज्यादा है। ये देखो ये है हम इर्तिफा खत्ती तरीका। और उसके बाद है एक और है, देखो ऊपर उसके के कम ढलान और ज्यादा ढलान और नशीब फराज हम इर्तिफा खत्ती तरीके में समझ सकते हैं। चलेंगे अब नेक्स्ट देखेंगे कि रंग का तदरीजी तरीका। रंग का तदरीजी तरीका बच्चों के पहले मैं नक्शा बे पर आ जाती हूँ ताकि मैं उसी को सामने रखकर आप लोगों को समझाती चलूं। ओके, दिस वन रंग का तदरीजी तरीका। ये तरीका बच्चों हम इर्तिफा खतूत पर मबनी होता है, इसका भी उससे ही ताल्लुक है। और खतूत के दरमियान बच्चों मुख्तलिफ रंग भरते हैं, और रंगों की ऊंचाई मुनासिबत से मुकर्रर की जाती है कि कितनी ऊंचा है। ज्यादा ऊंचा है तो उसका रंग अलग, कम ऊंचा है तो उसका रंग अलग। आबी हिस्से का यानी पानी वाले हिस्से का नीला रंग, जमीन का गहरा हरा, ज्यादा बुलंदी वाला हल्का हरा, और कम और इसके अलावा और भी ज्यादा बुलंदी वाला पीला। तो ऐसा बच्चों मुख्तलिफ रंगों का इस्तेमाल करके देखो जमीन का हरा, फिर उसके बाद बच्चों पानी का नीला, पानी का ये नीला कलर, उसके बाद नीले रंग से लगी हुई जमीन के लिए गहरा हरा रंग, पानी से लगी हुई जमीन जो रहेगी बच्चों उसके लिए गहरा हरा रंग, और ज्यादा इससे ज्यादा बुलंद जमीन के लिए हल्का हरा, और इससे भी ज्यादा हल्का हरा, और सबसे ज्यादा बुलंदी के लिए पीला। ऐसे मुख्तलिफ रंगों का इस्तेमाल करके बच्चों रंगों का तदरीजी तरीका इस्तेमाल किया जाता है। और ये रंगों के फर्क से बच्चों हमको पढ़ते आ जाता है कि इतने से इतनी बुलंदी पर जाएंगे तो पानी मिलेगा, इतनी बुलंदी पर है तो जंगलात है, और ज्यादा बुलंदी पर है तो ये सब रंगों का तरीका है।
उसके बाद है बच्चों नेक्स्ट वन है मुनब्बती खाका। मुनब्बती मतलब के डिजिटल एलिवेशन मॉडल। इस तरीके में बच्चों मसनूई सैयारों का इस्तेमाल किया जाता है और इनके जरिए मिलने वाली मालूमात से नक्शा बनाया जाता है। ये वाला नक्शा नक्शा जिम बच्चों मुनब्बती खाके से बनाया गया है, जिसमें सैयारों का इस्तेमाल करके सैटेलाइट का इस्तेमाल करके तस्वीर ली गई है बच्चों। और तस्वीर ली गई है इसमें और वाज़े तौर पर हमको जमीन की शक्लें नजर आती है, कलर नजर आता है, ढलान नजर आती है और कंप्यूटर की मदद से इस नक्शे का हर एक नुक्ते की ऊंचाई दिखाई देती है। इस तरह हम कुदरती नक्शों का इस्तेमाल बच्चों फौजी मुहिम, सयाहत, फौजी मुहिम मतलब मिलिट्री वगैरह में, और घूमने फिरने के लिए, और पहाड़ों को चढ़ने, जो चढ़ते हैं पहाड़ों पर उसे कोहे पैमा कहते हैं। तो कोहे पैमाई की मतलब पहाड़ों पर चढ़ने वालों के राह को मुतय्यन करने के लिए और माहौल की तरक्की के मनसूबाबंदी करने के वगैरह के लिए हम नक्शे बनाते हैं। अब बच्चों ये देखो, ये मैंने आप लोगों को समझाई हूँ 3 तरीके। पहला है हम इर्तिफाकती तरीका, उसके बाद है बच्चों रंगों का तदरीजी तरीका, और उसके बाद है बच्चों मुनब्बती मुनब्बती खाका या मुनब्बत डिजिटल एलिवेशन मॉडल। ये देखो बच्चों रंगों का तदरीजी तरीका देखेंगे यहाँ पर। आप अपनी बुक में भी पढ़ लीजिएगा बाद में कि ब्लू है तो 150 से कम बुलंदी, ये बुलंदी है। तो ये तमाम चीजें हमको पढ़ने में भी मदद करती है और रंगों की वजह से हमारे समझने में आसानी होती है कि पानी है, जंगल है, डोंट टच स्क्रीन साइना, ज्यादा बुलंदी है, और ज्यादा बुलंदी है। तो ये तमाम चीजें हमको समझने में भी मदद करती है। हाँ, तो सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों, ये वाले चौकोन के मसावी मकामात को खतों के जरिए जोड़ना है। डॉटेट्स को खतों के जरिए जोड़ना है बुक में, और जोड़ने के बाद आपने नक्शे के कौन सा तरीका इस्तेमाल किया वो ये चौकोन में लिखना है। हम इर्तिफाक तरीका जवाब आएगा और ये डॉटेट्स को जोड़ना है। कैसे जोड़ना है कि सेम बुलंदी वाले मकामात को हमको उसको जोड़ना है। जैसे ये 100 है, ये 100 है, ये 100 है, ऐसे सेम बुलंदी वाले मकामात को जोड़ना है। इसके अलावा बच्चों मौजूदा दौर में नक्शा बनाने के लिए बना जदीद तरक्की पा चुके हैं। मुतअद्दिद तरीके निकल चुके हैं बच्चों मौजूदा दौर में। इससे पहले प्रकाश छाया तरीका इस्तेमाल करके नक्शे बनाए जाते थे।
मतलब अभी के जमाने में जो नक्शे बनाते थे तो वो नक्शे जदीद मुतादिद जदीद तरीके इस्तेमाल करके बनाए जाते हैं, लेकिन बच्चों पहले तरीके में प्रकाश छाया, छाया मतलब के इमेज अक्स, तो उनका तरीका इस्तेमाल करके नक्शा बनाया जाता था। ये देखो, ये ये नक्शा उसी की मिसाल है, प्रकाश छाया नक्शे से बनाया हुआ नक्शे की मिसाल है। और एक और सबक में बच्चों तदरीजी रंग का तरीका इस्तेमाल करके नक्शा दिया हुआ है, वो नक्शा कौन सा है तलाश कीजिए। आप लोगों को किताब में देखना है और तदरीजी तरीका मतलब के रंगों का मुख्तलिफ इस्तेमाल करके नक्शा दिया हुआ नक्शा कौन सा है तलाश करके उसका इस्तेमाल उसका उन्वान लिखना है। तो बच्चों ये आज हमने नक्शा हमारा साथी देखे हैं। इसके अलावा हमको नक्शों में बच्चों देखेंगे मुख्तलिफ अलामात रहती है, मुख्तलिफ अलामात जो हमको पढ़ने में, नक्शा पढ़ने में और समझने में आसानी करती है। बच्चों हमने क्या क्या, हम स्कूल या घर के अतराफ की मुख्तलिफ चीजें जाहिर करने वाला खाका भी बना सकते हैं और मुख्तलिफ बातों को हम आपस में गुफ्तगू करके सॉल्व भी कर सकते हैं। अब बच्चे कई लोग नक्शे का इस्तेमाल करते हैं, खाका या नक्शे में अलग अलग इकाइयां दिखाते हैं। इन इकाइयों को हमको बच्चों समझने में मुश्किल होती है, पढ़ने में मुश्किल होती है, तो इसमें नक्शे में बताई गई इकाइयां सबको आसानी से समझ में नहीं आती और अलामत और इशारे भी समझ में नहीं आते। क्यों? क्योंकि बच्चों को मखसूस और यकसा तरीके से अलामत और इशारे जाहिर किए जाते हैं, तो वो सबके समझ में नहीं आते। तो चलेंगे हम अलामतें और इशारों के बारे में मालूमात हासिल करेंगे बच्चों। कि सबसे पहला है इशारे। इशारे क्या रहते हैं? मतलब नक्शे में अलग अलग चीजें बताने के लिए जो मफहूम इस्तेमाल किया जाता है, जो अलामतें इस्तेमाल की जाती है, उसे इशारे कहते हैं। अब मसलन के अगर ज्योमेट्रिकल फिगर होती है, तो जैसे कि ज्योमेट्रिकल फिगरों का जो इस्तेमाल करते हैं, जैसे ये खत हो गया, ये हो गया, छोटा सा बना रहा तो ट्राइंगल, और छोटा यहाँ बना है तो स्क्वायर, सर्कल, तो ये ज्योमेट्रिकल फिगर इस्तेमाल करते हैं इशारे में। इसके अलावा बच्चों है अलामतें। अलामतें अलग, अलामतों का मफहूम ऐसा है बच्चों कि अलामत चीजों के इस्तेमाल के लिए बनी हुई तस्वीरों की छोटी छोटी शक्लें, जो जैसे अब मस्जिद बनाना है, किला बनाना है, मंदिर बनाना है, रेलवे लाइन अगर मैप पर बताना है, तो हम क्या पूरा पूरा स्टेशन बनाकर बताएंगे क्या? नहीं बच्चों, मैं पटरी की अलामत बना दूंगी तो इससे हमको समझ में आ जाएगा कि वहां रेलवे लाइन गुजरी है। मैं एक लहर की अलामत बता दूंगी तो वो नदी है। मैं बड़ी अलामत बता दूंगी तो ये हाईवे सड़क है। मैंने किले की अलामत आप लोगों को बताई कि ऐसे 4 लाइन के बीच में गैप रहता है और ये लाइनें के कॉर्नर ऐसे जुड़े रहते हैं तो ये किला है। और अगर ऐसी लाइन रही उस पे झंडा रहा तो ये मंदिर है। मुख्तलिफ अलामतें बच्चों नक्शे की रहती है और इन अलामतों और इशारों के इस्तेमाल से हम मुख्तलिफ मकामात का मुख्तसर और सही मालूमात पर नक्शा देख सकते हैं और हमको सही मालूमात हासिल होती है। इसके अलावा देखो बच्चों, यहाँ पर मुख्तलिफ अलामतें दी हुई है। हाँ, ये देखो बच्चों, आपकी बुक्स में या आपने अपनी जिंदगी में या वो बोर्ड पे या रास्तों से या सड़कों पे बहुत सारी अलामतें दी देखी होंगी बच्चों। तो मुझे ये बताओ, ये अलामतें किसकी है? ये सबसे पहले तो बच्चों देखो, एक पेंसिल पे 2 बच्चे बैठे हुए हैं, तो ये अलामतें हमने कहाँ पढ़ा? ये सर्व शिक्षण अभियान की अलामतें आपको यहाँ लिखना है। मेरी पेन आज नहीं चल रही, उसको साफ करना पड़ेगा बराबर। इस बॉक्स में आपको सर्व शिक्षा अभियान लिखना है। क्या लिखना है? सर्व शिक्षा अभियान। इस बॉक्स में ये अलामत देख रहे हैं आप लोग, तो ये अलामत को देखो, फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ लिखने का। 1 मिनट, हाँ जरा चलेंगे। ओरली में जल्दी जल्दी पहले बोल देती हूँ बच्चों, ये बिकॉज ऑफ टाइम हमारा बहुत कम है। तो ये पहली अलामत है बच्चों सर्व शिक्षा अभियान की। क्या है लिखा हुआ इस पे? सर्व शिक्षा अभियान।
दूसरी अलामत है बच्चों दूरदर्शन की। ये कौन सी अलामत है? दूरदर्शन की। दूसरी वाली अलामत है दूरदर्शन की। हाँ, फिर थर्ड वन है बच्चों बाथरूम या टॉयलेट की। ऐसा लिखना है बाथरूम या टॉयलेट। उसके बाद हॉस्पिटल लिखना है, यहाँ यहाँ स्कूल लिखना है और यहाँ बाल भर्ती लिखना है। ये है बच्चों अलामतों के नाम, जो कि अगर मैं अभी बता सकती थी लेकिन ड्यू टू कम टाइम है। और इसके अलावा अदारा सर्वे ऑफ इंडिया ने जो नक्शे बनाते वक्त जिन इशारों का इस्तेमाल किया है उनका मुतालिया भी हमको करना है। जैसे डाक का शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं पोस्ट ऑफिस, इसे क्या पढ़ते हैं? पोस्ट ऑफिस। उसके बाद बंदरगाह, बंदरगाह किसे कहते हैं? जहां शिप जहाज, ओहो, जहां शिप जहाज रुकते हैं बच्चों उसे बंदरगाह कहते हैं। तो देखेंगे बंदरगाह, देखेंगे तो ये इसको पढ़ते आना चाहिए कि ये अलामत रही तो ये हो जाएगा बंदरगाह। और ये पोस्ट ऑफिस, ये बंदरगाह। ऐसी अलामत रही तो लाइट हाउस है, मतलब रोशनी का मीनार है। ये किला है, किले का सिंबल है। ये कब्रिस्तान है, बुक में आप लोग पढ़ सकते हैं। और ये बैनुल अक़वामी सरहदें है, बॉर्डर है मतलब। तो बच्चों इसके अलावा इधर भी है, देखोगे मैदान जंग मतलब तलवार की अलामत बनी हुई है। रेल का रास्ता, कुआं, चश्मा, कुआं, चश्मा, इलाके की ऊंचाई, आबादी, घास और तालाब, रास्ते, ये सब बच्चों अलामत है। और सर्वे ऑफ इंडिया ने जो भारत में नक्शे बनाने का मरकजी अदारा है बच्चों, सर्वे ऑफ इंडिया, ये भारत में नक्शे बनाने का अदारा है और इसका कयाम 1767 में हुआ है। और इस अदारे ने अमलन सर्वे करके भारत के बर्रे सगीर मतलब हमारे भारत के मुख्तलिफ पैमानों के मुताबिक मुकामात दिखाने वाले नक्शे बनाए हैं। सेहत के लिहाज से ये नक्शे दुनिया भर में तस्लीम किए जाते हैं और इसका मरकज हेड ऑफिस उत्तराखंड देहरादून में है। उत्तराखंड के दारुल हुकूमत देहरादून में है।